Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, as you know कि हमने उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज के जितने भी पेपर हमें मिले हैं अभी तक फ्रॉम 2011 टू 2020-21 वो पूरे डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। एंड आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ द उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. Next 51, which of the following is transferable property? Actionable claim can be transferred only as per section 130 of TPA. Pension, right to wage, chance of legacy, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता as per section 6 of TPA. Next 52, where mortgagee is entitled to enjoy the benefit of mortgage property in lieu of interest on debt, the mortgage is called as usufructuary mortgage. C is the answer. और मॉर्गेज की डेफिनेशन कहाँ पर है? मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, दैट इज 58 ए में है, फिर सिंपल मॉर्गेज बी में, इक्विटेबल मॉर्गेज इसको बोलते हैं मॉर्गेज पर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ये है एफ में, यूसुफ्रक्चरी है डी में, ई फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ सेलर? सेलर की ड्यूटी क्या नहीं है? टू प्रोड्यूस द टाइटल, टू डिस्क्लोज पेटेंट डिफेक्ट्स, टू एग्जीक्यूट कन्वेंस, टू पे द आउटगोइंग्स। टू प्रोड्यूस टाइटल डीड ड्यूटी है उसकी, फिर है एग्जीक्यूट कन्वेंस ये भी है, टू पे दी आउटगोइंग, आउटगोइंग मतलब जो भी खर्चे हुए हैं, मान लो कोई रेंट देना है, प्रॉपर्टी पर कोई चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वाटर बिल है, तो वो सेल से पहले कौन पे करेगा? सेलर, एज पर सेक्शन 55 ऑफ टीपीए। तो लेकिन इसमें देखिए टू डिस्क्लोज पेटेंट डिफेक्ट, पेटेंट डिफेक्ट कौन से? जो सामने दिख रहे हैं, प्राइमा फेसी दिख रहे हैं, अगर लेटेंट होगा तो ड्यूटी सेलर की है, अदरवाइज नहीं है, तो बी इसका आंसर रहेगा। Next 54, consideration for lease is a premium. D is the answer. Next 55, a person who projects himself to be the owner when he is not is called as ostensible owner. Section कौन सा है? 41 TPA, transfer by ostensible owner. Next 56, section 14 of TPA deals with rule against perpetuity. C is the answer. Next 85, the term donatio mortis causa refers to death bed gift. A is the answer. Actionable claim transfer कहाँ पर है? 130 TPA universal doni, 127, 128 TPA. Next 86, right of redemption arises in the case of mortgage. B is the answer. सेक्शन कौन सा है? 60. गिफ्ट्स कितने में? 122. लीज कितने में है? 105. एक्सचेंज 118. Next 87, which of the following is the doctrine of equity? Doctrine of redemption. A is the answer. Next 88, which of the following deals with doctrine of election? Section 35. D is the answer. 53 ये क्या है? पार्ट परफॉर्मेंस की है। Next is 61, attached to the earth means things rooted in the earth, embedded in the earth है, attached to what is so embedded in the earth. All of the above, D is the answer. ये interpretations में है ये of Transfer Property Act. Next 62, a transfer of rupees 5,000 to B on a condition that B resides with A, otherwise to C. The transfer in favor of C is a conditional transfer. B is the answer. तो ये क्या है? कंडीशन प्रेसिडेंट है कि भाई बी जो है ए के साथ रहेगा या फिर सी के साथ रहेगा, तब इसको 5,000 रुपये मिलेंगे। ए के साथ रहेगा अदरवाइज टू सी, तो उसको बी को 5,000 रुपये मिलेंगे। तो ये क्या होगी? कंडीशन प्रेसिडेंट हो गई, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 63, रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स आर सच कॉन्ट्रैक्ट्स विच रिस्ट्रिक्ट्स यूज और एंजॉयमेंट। ये बिल्कुल ठीक है ये। फिर कंडीशन इम्पोज बाय ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टिंग यूज और एंजॉयमेंट, ये ऐसे बिल्कुल ठीक है, तो बोथ हो गए। सी इज द आंसर।
Next 64, fitting the grant of estoppel is doctrine of section 43. B is the answer. Mohammad Musa versus Aghor Kumar Ganguly is a leading case on, ये केस है ओरल ट्रांसफर पर एंड पार्ट परफॉर्मेंस पर भी, तो डी इसका आंसर रहेगा। डिस्पेंडेंस कितने 52 में, फ्रोडेंट ट्रांसफर 53 में, डॉक्टर सिलेक्शन कितने में 35 में, पार्ट परफॉर्मेंस पार्ट है पास नहीं है ये है 53A। नेक्स्ट 66, इंग्लिश मॉर्टगेज मीन्स मॉर्टगेजर शुड बाइंड हिमसेल्फ टू रिपे द मॉर्टगेज मनी। ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज शुड बी एब्सोल्युटली ट्रांसफर टू द मॉर्टगेजी ऑन द पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी, मॉर्टगेजी विल रिकन्वे द प्रॉपर्टी। है तीनों ही होंगे तभी होगा, डी इज द आंसर। इंग्लिश मॉर्टगेज कहाँ प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 58E में, E फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट 67, वेयर टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ द अदर, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। सी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये सेक्शन 118 TPA। सेल कितने में 54 में, एक्शनेबल क्लेम की बात कहाँ की गई 130 में, चार्ज कितने में है 100 TPA। नेक्स्ट 68, लीज कैन बी डिटरमाइंड बाय मर्जर फॉर फीचर्स सरेंडर ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 111 ऑफ TPA। नेक्स्ट 69, रिडीम अप एंड फोरक्लोजर डाउन इज द राइट ऑफ अ, देखिए ये सेशन रिलेटेड है 91 एंड 94 से, तो ये राइट होता है पाइन मॉर्टगेजी का। 94 में क्या लिखा हुआ है, राइट्स ऑफ मीन मॉर्टगेजी, तो राइट है मीन मॉर्टगेजी का ये, तो सी इसका आंसर रहेगा सेक्शन 94। फिर है 70, नो मॉर्टगेजी पेइंग ऑफ अ प्रायर मॉर्टगेज शैल देयर बाय एक्वायर एनी प्रायोरिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल सिक्योरिटी, इट इज कॉल्ड एज रूल अगेंस्ट टैकिंग। बी इज दी आंसर। सेक्शन कौन सा ये सेक्शन 93। सब्रोगेशन कितने में 92, मार्शलिंग कितने में है 81 में। Next 61, Nemo that quad-non habit means no one can transfer what he doesn't possess. यहाँ क्या लिखा है, वन कैन ट्रांसफर, नो वन कैन ट्रांसफर, तो वन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट ही डजंट पोजेस, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 62, ए ट्रांसफर द लैंड टू बी विद द कंडीशन दैट इफ बी सोल्ड इट ही मस्ट सेल इट टू सी एंड नोबडी एल्स, द कंडीशन, ये कंडीशन कैसी है, वॉइड हो जाएगी, सेक्शन 25 लग जाएगा कंडीशन, क्योंकि ट्रांसफर कर रहा है और एब्सोल्यूट नहीं हुआ फिर वो। नेक्स्ट 63, सेक्शन 52 ऑफ TPA कंटेन्स डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस, ए इज द आंसर। पार्ट परफॉर्मेंस कहाँ पर है 53A में, इन द ग्रांट ऑफ एस्टोपल 43। नेक्स्ट 64, ए सूट टू ऑब्टेन अ डिक्री दैट अ मॉर्टगेज शैल बी एब्सोल्युटली डिबार्ड ऑफ हिज राइट टू रिडीम द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सूट फॉर, पार्ट परफॉर्मेंस तो नहीं है, फोरक्लोजर, सी इज द आंसर। इलेक्शन कितने 35 में, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 65, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन, वो तो होना ही चाहिए, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन बाय ऑन बिहाफ ऑफ डोनर एंड ड्यूली टेस्टेड, बट सेक्शन 123 में क्या लिखा हुआ है, बी, तो बी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है 123 of TPA। Next 66, a mortgage by deposit title deed is called as equitable mortgage, C is the answer। mortgage definition कहाँ पर 58 में और 58A में है एक्चुअली, mortgage, mortgager, mortgage की definition। फिर जो ये different mortgages हैं, B में है simple mortgage, C में है फिर mortgage by conditional sale, फिर है usufructuary mortgage है 58D में, फिर E फॉर इंग्लिश मॉर्टगेज, मॉर्टगेज जो है डिपॉजिट टाइटल डीड कहाँ पर है ये F में, एनोमलस G में। नेक्स्ट 67, ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर कैन बी मेड बाय, ओरल नहीं हो सकती, सिंपल नहीं होता, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, डी इज द आंसर। और कहाँ मेंशन किया गया है ये सेक्शन 107 ऑफ TPA में। Next 68, which one of the following statement is not correct in context of transfer of property? It means an act by which a living person conveys property, बिल्कुल ठीक है। B है, he conveys property in present or in future, yes ये ठीक है। He conveys to one or other living person, ये भी ठीक है। फिर he cannot transfer property to himself and one or more other living persons,
नहीं, ये भी कर सकता है, बिकॉज देखिए यहाँ पर हिमसेल्फ एंड वन और मोर है, उसके कहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 5 में, तो ये हो गया रॉन्ग। फिर इसका आंसर क्या रहेगा? डी, रॉन्ग पूछा हुआ है। सेक्शन 5 आप देख सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम? राइट टू क्लेम इन प्रॉफिट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम, तो ए इसका आंसर रहेगा। अरियर हो गया, अर्नेस्ट रिटर्न, ये सब हैं जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं। नेक्स्ट 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ गिफ्ट मेड बाय मोहम्मदन? डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट ये होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डिलीवरी पोजेशन होना चाहिए, गिफ्ट मस्ट बी अफेक्टेड थ्रू अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये जरूरी नहीं है, तो डी इसका आंसर हो गया, बिकॉज चैप्टर ऑफ गिफ्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू मोहम्मदन लॉ और डोनियस मोर्टिस कोजा। कहाँ लिखा हुआ है ये? सेक्शन 129 टीपीए में। नेक्स्ट 61, अंडर टीपीए इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ए इज द आंसर का मेंशन किया गया सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में। नेक्स्ट 62, अंडर टीपीए अटैच टू अर्थ मीन्स रूटेड इन द अर्थ एज ट्रीज एंड श्रब्स, एम्बेडेड इन द अर्थ एज वॉल्स एंड बिल्डिंग्स, दोनों हो गए। फिर अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, यस, तो डी इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये भी सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशंस में ही है। नेक्स्ट 63, विच सेक्शन ऑफ टीपीए एक्सप्लेन्स ही हु एक्सेप्ट्स द बेनिफिट अंडर द इंस्ट्रूमेंट मस्ट अडॉप्ट द होल ऑफ इट, ये डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है, सी इज द आंसर। 52 में क्या है? लिस पेंडेंस की डॉक्ट्राइन। 41 में क्या है? ऑब्स्टेंसिबल ऑनर। 53 ए क्या है? पार्ट परफॉर्मेंस। 64, एक्शनेबल क्लेम मींस अनसिक्योर्ड डेट, एनी डेट, फिर क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविल कोर्ट्स टू ग्रांट रिलीफ। अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ है ये, तो अगर एक्शनेबल क्लेम की इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है मींस अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन द डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाइपोथेकेशन, मतलब सिक्योर्ड डेट नहीं होना चाहिए, वो अनसिक्योर्ड होना चाहिए, पहली बात। फिर अगर देखें तो क्लेम जो है रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविल कोर्ट्स होना चाहिए टू ग्रांट रिलीफ, ये भी ठीक है। फिर दोनों अगर ठीक होंगे ये, तो फिर एनी डेट ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, तो मैं कहूँगा कि ए एंड सी भी ठीक हो गए। एनी डेट नहीं हुआ, एनी डेट अदर देन दी सिक्योर्ड लिखा हुआ है सेक्शन में, तो हो सकता है कि इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव भी हो एज पर दी ऑप्शन, बिकॉज दो ठीक हो गए। हो सकता है कि ऑप्शन सी रॉन्ग है, इसमें क्वेश्चन ही गलत हो गया हो। नेक्स्ट 65, टू क्रिएट एन इंटरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट शुड बी देयर? नो डायरेक्ट इंटरेस्ट, यस, आप किसी पहले ट्रस्टी को दीजिए फिर वो बेनिफिशियरी को देगा, दे शुड बी नो डायरेक्ट इंटरेस्ट, ए इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 13। Next 66, which conditions apply to create a vested interest? It is not defeated by death of transferee before he obtains possession. It is transferable and heritable. फिर it accrues present and immediately even though the enjoyment is postponed. Yes, all of the above, D is the answer. Rule of perpetuity section कौन सा है? 14 TPA. Next 67, the act of transferring property during pendency of a proceeding makes the transfer void. A is the answer. Doctrine of lis pendens applies, section 52. Next 68, X sells a property to Z with a condition that he must live in it. The condition is valid. Illegal है, C is the answer. Next 69, which of the following is not a transfer of property? Sale है, mortgage है, lease भी है, partition नहीं है, D is the answer. Partition TPA में प्रोवाइड नहीं किया गया है। सेल कितने में है? 54 में। मॉर्गेज कितने में? 58 में। लीज कितने में है? 105 में। नेक्स्ट 70, हाउ कैन ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी बी मेड? देखिए वो ओरली भी हो सकती है कोई प्रॉपर्टी से, कुछ जो है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होने चाहिए, तो 100 रुपये से कम वाली अगर हैं तो ओरली कर सकते हैं ट्रांसफर, बाकी जो है रजिस्टर होना चाहिए, तो दोनों हो सकते हैं। यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है किसके लिए पूछ रहे हैं, तो बोथ इज द आंसर। Next 61, under provision of transfer of property act, if there are patent defect in the property, the maximum of caveat emptor, caveat emptor तो क्या होती है? बायर बिवेयर। पेटेंट डिफेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली सामने दिख रहे हैं, फिर भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ये हो लगेगा। फिर मैक्सिमम उब्रीमा फिडेस, अटमोस्ट गुड फेथ, वो भी लगेगी। दोनों ही हो गए, सी, बोथ ए एंड बी, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 62, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ टीपीए? राइट ऑफ मीन प्रॉफिट, ये नहीं होता। डिक्री फॉर डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट, ये प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स होना चाहिए, ये भी गड़बड़ करती है यहाँ पर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू ए प्रोस्टिट्यूट फॉर फ्यूचर कोहैबिटेशन,
फिर सबलीज ऑफ ए फार्म फॉर अ रिटेल सेल ऑफ ओपीएम, ये गलत है। तो इसमें ये सी वाला ठीक हो सकता है, क्योंकि देखिए ये कोई जो है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, रह सकते हो। अगर ये देखें तो दोनों फॉल कर जाते हैं। ये सेक्शन 6 है कि क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो वहाँ पर लिखा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट तो यही है। और अगर सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाला, तो ये ओपीएम वाला हो गया। फ्यूचर कोहैबिटेशन है, प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट 63 इंग्लिश रूल अगेंस्ट परपेचुइटीज डील्स विद इंटरेस्ट टू राइज इन फ्यूचर, या फिर इंटरेस्ट इन प्रोएसेंटी। तो ये यहाँ पर प्रोजेंटिया लिखा है, ये प्रेजेंटिया ही होगा, ये होना चाहिए प्रेजेंटिया, मतलब इन प्रेजेंट। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है वो क्या प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हो सकता है? हाँ, दोनों हो सकता है, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 64 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ टीपीए द ईजमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड या कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, यही लिखा हुआ है कहाँ पर? सेक्शन 6 के क्लॉज सी में। तो अगर अलोंग विद कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर हो सकती है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 65 अकॉर्डिंग टू द कोर्ट रूलिंग इन इंडिया अ सर्वेंट ऑक्युपाइंग द प्रीमाइसेस ऑफ द ओनर डज सो एज अ लाइसेंसी, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 66 अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिन्यूअल ऑफ लीज इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ ओल्ड लीज। अब ये कौन सी जजमेंट्स हैं, अपने आप ही बना देते हैं। तो ये सिंपल भी तो पूछ सकते थे कि भाई रिन्यूअल ऑफ लीज क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ ओल्ड लीज होता है ऑब्वियसली, न्यू लीज थोड़ी होगा। ए इज द आंसर। Next 67 in English law a minor hold a legal estate in land in India lease by minor is void। मोहरी बीबी, धर्मदास बोझ, पता है ना, सेम केस तो है, लीज नहीं कर सकता माइनर। Next 68 grant of license under the provision of Indian Easement Act must be express implied, can be express can be implied, तो सी इसका आंसर रहेगा। कहाँ लिखा हुआ है, कौन सेक्शन में लिखा हुआ है? ये सेक्शन 54 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट में। नेक्स्ट 69 सब्रोगेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 92 टीपीए कैन बी कन्वेंशनल और लीगल, आइदर ए और बी, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 70 द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी एज गिवन इन सेक्शन 14 टीपीए अप्लाइज टू बोथ मूवेबल इमूवेबल, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 71 contract of tenancy can be split up by court in eviction proceedings, operation of law, yes, either A or B, C is the answer। Next 72 B makes a gift of residential house comprising 3 different units, one each to D enough, and but E refuses the gift, which of the following statement will apply? One unit will default back to B, yes, A is the answer। Next 73 a right to recover cow trapped on the owner's land will be, it is an actionable claim, A is the answer। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में कहाँ लिखा गया? टीपी में सेक्शन 130 में। नेक्स्ट 74 चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ऑपरेशन ऑफ लॉ, बोथ ए एंड बी, सी इज द आंसर। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 100 टीपीए में। नेक्स्ट 61 सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू, लीज पर एप्लीकेबल नहीं होता ये, डी इज द आंसर, सेक्शन में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज 62 बेलामी वर्सेस स्पाइन इज रिलेटेड टू विच डॉक्ट्राइन? डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 63 अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मर शैल प्रिवेल, ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 82 में, तो सी इसका आंसर रहेगा। एंड अगर देखें तो कौन प्रिवेल करेगा? मार्शलिंग विल प्रिवेल। नेक्स्ट 64 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद असेशन टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, तो असेशन टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी किस कहाँ पर है? तो दैट इज सेक्शन 63 एंड 70 बोथ, सो आंसर क्या रहेगा इसका? सी, बोथ 63 एंड 70, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न बाय टीपीए, ऑनरस गिफ्ट है 127 में। मोर्टिस कोजा गिफ्ट ये नहीं है। यूनिवर्सल गिफ्ट, यूनिवर्सल डोनी है
128 में गिफ्ट डिस्क्वालीफाइड पर्सन, गिफ्ट तो कर ही सकते हैं 122 के अकॉर्डिंग, इसमें कौन सा नहीं हुआ फिर? मोटिस कोजा गिफ्ट। नेक्स्ट 66, रेमेडी फॉर फोरक्लोजर इज अवेलेबल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्टगेजेस? तो वो होती है कंडीशनल सेल या फिर एनॉमलस मॉर्टगेज पर। ये लिखा हुआ है कहाँ पर? सेक्शन 67 में, तो सी इसका आंसर रहेगा। मॉर्टगेज की डेफिनेशन कहाँ पर? सेक्शन 58A में। सिंपल मॉर्टगेज कहाँ डिफाइन है? 58B में। यूसुफ्रक्चरी डी में। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल ये है सी में। इंग्लिश मॉर्टगेज ई फॉर इंग्लिश है ई में। Next 67, rule against double possibilities was recognized in, it was recognized in Whitby versus Mitchell, B इसका आंसर रहेगा। Next 68, the rule redeem up and foreclosure down is a combination of 91 and 94, D इसका आंसर रहेगा। Next 69, which of the following section of TPA define charge? चार्ज कहाँ पर है? सेक्शन 100 में है, A इसका आंसर रहेगा। Next 70, which section of transfer property provides against conditions restraining alienation? वो है सेक्शन 10 में, 20 का आंसर रहेगा। 9 में क्या है? ओरल ट्रांसफर। 12 में क्या है? कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल। 11 में क्या है? रिस्ट्रिक्शंस रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। नेक्स्ट 61, vested interest created in favor of unborn person comes under section 20 TPA, A is the answer. Next 62, actionable claims means claim to any debt or beneficial interest. Yes, A both. Next 63, doctrine of election in the transfer of property act is provided under section 35, A is the answer. Next 64, the term transfer of property is defined in TPA in section 5, 3 is the answer. Next 65, the registration of mortgage is not required where the mortgage is mortgage by deposit of title deeds. D is the answer. Mortgage is defined section 58. Simple is in 58B. Anomalous is in G. E for English, and this is F. Next 66. Any provision made as a clause on redemption is void. A is the answer. And redemption is provided in section 67 TPA. Next 67. The lease of immovable property is terminable either by party by a notice of। देखिए टर्मिनेशन ऑफ लीज के लिए नोटिस तो है वो प्रोवाइड किया गया सेक्शन 106 में। हाउ एवर देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि कौन सी लीज है। वैसे मान लो कि एग्रीकल्चर लीज है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस है जो कि ईयर टू ईयर होती है, उसमें 6 मंथ का नोटिस पीरियड है। एंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी होती है 15 डेज की, जिसमें हम लीज फॉर मंथ टू मंथ चलती है। बट अब देखिए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, यहाँ पर अदर नहीं लिखा हुआ। पर्पस कौन सा? एग्रीकल्चर है तो 6 मंथ्स है, और देखिए 6 मंथ्स भी है यहाँ पर, 15 डेज भी है, तो ये कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, सो आई वुड से कि दोनों ही हो सकते हैं इसमें आंसर लगाएं तो, बट द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, नॉट प्रॉपर। नेक्स्ट 68, पाइन मोर्टगेजी इज subsequent mortgagee, C is the answer. Next 69, in a lease of immovable property, what is transfer? Is the right to enjoy the property, B is the answer. Next 70, transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor is known as fraudulent transfer, C is the answer. Section 53 provides for the same TPA. Next 61, accumulation of income can be directed under section 17 for a period not longer than lifetime of transferor or a period of 18 years from the date of transfer. D is the answer. It is mentioned in section 17 itself. Next 62, fitting the grant by a stockpile comes into operation when the transfer is made prudently, erroneously, under caution, or under mistake. No, after transfer he acted in good faith. No, prudently or erroneously, A is the answer. Section is 43 TPA. Next 63, the condition restraining absolute alienation is not void when for the benefit of lesser legal heirs or lessee. Lesser, A is the answer. Section 10 provides for the same.
Next 64, lis pendency is not applicable to suit or proceedings which is ex parte collusive. Collusive B is the answer. Lis pendens provided in section 52 TPA. Next 65, where the mortgager ostensibly sells the mortgage property, the transaction is called anomalous, but no, this is not a mortgage. D is the answer, none of these. Next 66, the right of a mortgagee to institute a suit for foreclosure is not available when the mortgage property is under lease, mortgage is alienated, decree has been made for the redemption of the mortgage property. In all of these, D is the answer. And where the right of foreclosure is in section 67 TPA. Next 67, mortgage property can be sold without intervention of court only in case of English mortgage. C is the answer. And where it is provided English mortgage, 58E for English, simple is 58B. Deposit title deed F. Anomalous is G. Next 68, where the tenant continues to remain in possession even after the expiry of notice to quit, he is treated as tenant at sufferance. C is the answer. Next 69, the following among is not an actionable claim. Claim for arrears of rent, this is an actionable claim. Change of partnership, yes. Claim for unpaid dower of a Muslim woman, this is an actionable claim. Decree of civil court, no, it is not actionable claim. D is the answer. Next 70, donatio mortis causa means deathbed gift. Gift to a dying person, no. Gift made by a person on his death, no. Then gift which are made in contemplation of death, yes. C is the answer. Next 61, which of the following is not an actionable claim? So claims arrears of rent, yes. Share in partnership, yes. Mean profit is not an actionable claim. Ordinary as well as endowment, life insurance, these are actionable claim. C is the answer. Next 62, the term sale is defined in section 54. B is the answer. Next 63, which of the following is not correctly matched with respect to TPA? Oral transfer, just discussed section 9. Rule against perpetuity 14. Doctrine section 35. Ostensible honor, that is 41. D is the answer. It is not correctly matched. Next 64, which of the following provision of TPA relates to usufructuary mortgage? A, define what is mortgage. B is simple mortgage. D is usufructuary mortgage. E is English mortgage. Okay, so answer is C, 58D. Next 65, as per provision contained in TPA in case of gift, if donee dies, donee है यहाँ पर double E लगाना चाहिए, before acceptance, then the gift is void. C is the answer. There are so many spelling mistakes in this paper. This is mentioned in section 122 TPA. Next 66, A transfer rupees 5,000 to B on condition that he shall execute a certain lease within 3 years after A's death. If he should neglect to do so to C, it means अगर B ने neglect किया तो वो 5,000 C को. B dies in a lifetime of A. Now B dies. Which section of TP applies in deciding legal right of C? That is 27. A is the answer. And this is illustration A of that section. 27 talks about prior rights. Next 67. A marriage settlement made to defeat or defraud creditor is voidable under section 53 TPA. This was held in case of Al-Mallu versus Minakshi. C is the answer. Next 68. Under provision of TPA, the unborn person acquires vested interest on transfer of his benefit immediately upon his birth. A is the answer. Very simple. This is mentioned in section 20 of TPA. Next 69. Novation of a contract means renewal of original या फिर substitution of a new contract in place of original. B is the answer. Where it is provided in section 62 of Contract Act. Next is 70. X enters into a contract with Y for which Y is guilty of fraud. This is fraud. So many spelling mistakes. X can
set aside the contract and recover damages. Set aside contract but cannot recover damages. If recover damages but cannot set aside contract, it is voidable. Any agreement obtained by fraud is voidable at the option of other party, and they can also recover the damages. A is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of Transfer Property Act from the year 2011 to 2021 of the Odisha Judicial Services. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है, कोई सजेशंस और एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.